Afternoon, everyone. I, on behalf of National Gallery of Modern Art, welcome you all to this great evening for a special session under the banner of NAIMISHA 2022. I hope all of you are enjoying the session with lots of activities, lots of creations, and a lot of things yet to come. Now, today's session is a storytelling session, Kisse Kahani. That would be conducted by Srimoy Dasgupta. Let me give a very small introduction, a very brief introduction. Srimoy Dasgupta, a theater activist and a mentor, multidisciplinary artist also. And she is also into storytelling and story writing facilitator. She worked as associate editor at Starling Publications, handling clients like Cartoon Network, Warner Brothers, DC Comics, and many more. She has been commissioned editorship for several publications like Sahitya Academy, Niyogi Books, to name a few. She's been a disciple at Uday Shankar Creative Dance Academy. She joined San Saptak in 2003 and is currently working as an assistant administrator. She is a mentor for theater students also. She loves storytelling and has professionally conducted storytelling sessions for San Saptak, Sahitya Kala Academy, Craft Museum, Hastakala Academy, and National Gallery of Modern Art, and many other reputed schools also. She is presently working on her own book on paranormal stories. She also conducts storytelling and story writing workshops to improve creative thinking and writing skills. Now with this, let me give a warm welcome, Srimoy Dasgupta. Thank you. Thank you so much. Am I audible? Give me a thumbs up. Thank you. So, today's Kisse Kahani. आज मैं आपके सामने जिस मास्टर आर्टिस्ट की कहानी लेकर आई हूँ, उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने से पहले कुछ ऐसे मास्टर आर्टिस्ट है जिनके बारे में अगर मैं ना कहूँ तो सेशन अधूरा रह जाएगा. तो बिफोर वी मूव ऑन टू द स्टोरी, बड़ी मजेदार कहानी है वैसे, लेट मी टेल यू फर्स्ट. लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सर्टन मास्टर आर्टिस्ट जिनको हम जानते हैं एज द 9 gems ऑफ इंडियन आर्ट. वो क्यों, वो कैसे, हम आज उनमें से 3 मास्टर आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे. और जो कहानी है वो इन्हीं में से एक मास्टर आर्टिस्ट की लिखी कहानी है. तो इसके साथ मैं अपना थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ टू गिव यू अ स्लाइड शो एंड टू टेक यू ऑन दैट जर्नी विथ मी. So I hope you can see the screen. Okay. So I'll be introducing you to the Navratan of Indian art and culture. Navratan मतलब the 9 gems. वैसे तो if you go to the NGMA site, ngmaindia.gov.in, वहां पे आपको एक स्लाइड मिलेगा जिसपे लिखा हुआ है परिक्रमण, जर्नी इनटू द टाइम. वहां पे टाइमलाइन पे आप देखेंगे मास्टर आर्टिस्ट कुछ नाम दिए हुए हैं, छोटे छोटे पोर्ट्रेट्स दिए हुए हैं. इफ यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट द एंटायर अरीना ऑफ द वर्क्स, द कलेक्शंस दैट आर देयर एट एनजीएमए. आप विजिट करें या उसी पे आप वर्चुअली आप उन पेंटिंग्स को देख सकते हैं. तो इसके साथ मैं आज जो सबसे पहले जो बात करना चाहती हूँ, why they have been known as the Indian, the 9 gems of Indian art.
अब इंडिया, we know that it's a country of colors and flavors and culture and unity in diversity जैसे हम कहते हैं. So Indian government in the 1970s उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ पेंटर्स हैं इंडियन जिन्होंने इंडिया के इस कल्चर को, कल्चरल ईथॉस को बहुत भरपूर तरीके से, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी ग्लोरी, बट हमारा जो डे टू डे एवरीडे लाइफ है उसको पेंट किया. ऐसे 9 मास्टर आर्टिस्ट का काम उन्होंने सिलेक्ट किया और उनको अनाउंस किया या डिक्लेयर किया गया द 9 gems ऑफ इंडियन आर्ट. एंड इट वाज अ ह्यूज ऑनर टू दीज आर्टिस्ट, क्योंकि उस टाइम पे उनके काम बाहर भी देशों में ऑक्शन होते थे. तो इस बार उन्होंने क्या किया कि सारे उन पेंटिंग्स को ऑफ दोस पर्टिकुलर आर्टिस्ट उनको इंडियन बॉर्डर्स के बाहर जाने नहीं दिया फॉर अ फ्यू डेकेड्स, बट ताकि इंडिया में उनका पेंटिंग, उनके सोच और भी फैल सके. तो इसके साथ वी कम टू द फर्स्ट मास्टर पेंटर, जामिनी रॉय. आप सब ने नाम सुना होगा. जामिनी रॉय 1887 में उनका जन्म हुआ और इसके बाद में जब आपको उनका पेंटिंग दिखाऊंगी आप बोलेंगे अरे ये पेंटिंग तो हमने देखी हुई है. आप किसी भी हाउस होल्ड में चले जाइए, स्पेशली बंगाली हाउस होल्ड या किसी भी आर्ट कलेक्टर्स या आर्टिस्ट से एंथुजियास्टिक जो है उनके घर में चले जाइए, आपको जामिनी रॉय के पेंटिंग्स, उनके प्रिंट्स आपको जरूर मिल जाएंगे दीवार पे हैंग करते हुए. मैं उनकी पेंटिंग्स पहले आपको, है ना, ये पेंटिंग्स आपने देखी हुई है. पहला जो है देखिए, मदर एंड चाइल्ड, 3 पुजारिनी, द कैट, 2 cats होल्डिंग अ प्रॉन. ये कृष्ण जी हैं, ये दुर्गा हैं. और ये है संथाली, वो संथाल ट्राइबल जो आदिवासी है उनके लाइफस्टाइल से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. और संथाल मदर एंड चाइल्ड, संथाल गर्ल. सबसे मजेदार किस्सा है जामिनी रॉय का, सबसे ज्यादा आर्टवर्क्स कॉपी हुई हैं उनकी. और उसके साथ जामिनी रॉय जी का एक बहुत ही मजेदार एक वो था, जामिनी रॉय जी ना हर किसी को अपने पेंटिंग्स बेचा नहीं करते थे. he would only sell his paintings to you if he could understand, अच्छा you are passionate about my paintings and you will maintain them properly. मतलब आप जब एक पेंटिंग खरीदते हैं या कोई भी प्रिंट खरीदते हैं, फ्रेम होता है, ग्लास होती है, उसके पीछे पेंटिंग को रखा जाता है, राइट. कभी कभी हम डस्ट करना भूल जाते हैं, उस पर धूल जमता रहता है या मॉइस्चर की वजह से फंगस लग जाता है. तो अगर उन्होंने देख लिया कहीं से भी कि मेरी पेंटिंग्स को तो इस तरीके से रखा नहीं जा रहा है, दे आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, वो उस ग्राहक से वापस अपनी पेंटिंग खरीद लेते थे. और इसलिए वो बहुत सारी पेंटिंग्स करते थे, छोटे बड़े बहुत सारी पेंटिंग्स करते थे. और उस जमाने में 100, 200, 300 रुपए में बेचा करते थे, ताकि अगर उन्हें पता लग गया कि ये पेंटिंग ठीक से आप रख नहीं रहे अपने घर पे तो वो वापस खरीद सके. तो इस जामिनी रॉय जी से बहुत लोग डरते भी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने स्टूडियो में अपने काम के लिए बिता दी. ये जामिनी रॉय जी के बारे में थोड़ा सा मैं उनके बायोग्राफी के बारे में बताऊं. जामिनी रॉय जी बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, आप सबने सुना होगा बांकुड़ा, वहां पे उनका जन्म हुआ. काफी एफ्लुएंट परिवार के थे. और उनके जो पिताजी थे वो भी आर्ट में इंटरेस्ट रखते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे. वहां से रिटायर करके उन्होंने भी आर्टिस्ट, अपने आर्टिस्टिक एबिलिटीज को और वो किया. उनसे सबसे ज्यादा प्रेरित हुए जामिनी रॉय जी. उसके बाद उन्होंने
कैलकाटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से अपना फॉर्मल ट्रेनिंग लिया आर्ट के लिए। और उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के वाइस प्रिंसिपल अवनींद्र नाथ ठाकुर हुआ करते थे। वो भी इंडियन 9 जेम्स में से एक मास्टर पेंटर है। उनके अंडर उनकी ट्रेनिंग हुई। और पहले पहले जब जामिनी रॉय जी ने पेंटिंग शुरू की तो ज्यादातर पोर्ट्रेट्स बनाया करते थे। लेकिन 1925 में एक बहुत फेमस जगह है कलकत्ता में, काली घाट। वहां वो बंगाल फोक आर्ट के लिए बड़ा मशहूर है, उसे कहते हैं काली घाट पट पेंटिंग्स। अब काली घाट के आसपास जो विलेजेस हुए, उनके जो विलेजेस थे वो पट यानी कपड़े पे पेंटिंग्स किया करते थे और उनको वहां काली घाट के वहां बेचा करते थे। जैसे आपने मधुबनी आर्ट देखी होगी या डोकरा आर्ट देखा होगा, वारली आर्ट देखा होगा, ये सब फोक आर्ट है, विलेजर्स सारे पेंट करते हैं। उसी तरीके से काली घाट पे भी इस तरीके की पेंटिंग्स वो बेचा करते थे और बहुत सिंपल सिंपल पेंटिंग्स हुआ करती थी। काली घाट पेंटिंग्स पहले शुरू हुई माइथोलॉजिकल पेंटिंग से, जैसे रामायण से या महाभारत से या रामचरितमानस या वेद या उपनिषद की छोटी छोटी कहानियां उसमें दिखाई जाती। ये देखिए काली घाट पेंटिंग्स। लेकिन धीरे धीरे वो एवरीडे लाइफ के बारे में भी उन्होंने पेंटिंग्स करना शुरू किया। जैसे एक आप देख सकते हैं जो बीच में जो पेंटिंग है, वो हनुमान और रावण के बीच बड़ी तगड़ी लड़ाई हो रही है, लेकिन उसके पास में देखिए एक बिल्ली है जो एक श्रिम्प या प्रॉन चुरा के भाग रही थी, उसकी भी पेंटिंग है। और इस तरफ देखिए कि एक औरत अपने कान साफ करवा रही है बार्बर से। तो इस तरीके की बहुत सिंपल सिंपल पेंटिंग्स वो ड्रॉ करके कपड़े पे पट पे वो बेचा करते थे। और इससे जामिनी रॉय जी बड़े इन्फ्लुएंस हुए और इसी से उन्होंने अपना ये स्टाइल डेवलप किया। और क्योंकि ये इतना सिंपल स्टाइल है, इसी वजह से लोगों ने इसको बड़ा कॉपी किया है। लेकिन ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल वो कैनवस पे नहीं करते थे, वो उसके बाद वो भी कपड़े पे करने लगे या जूट पे करते थे। और वो खुद अपने कलर्स बनाते थे, जैसे मड से, चौक से या फूलों के रस से, पत्तों के रस से वो अपने खुद के कलर्स बनाया करते थे और उसको अप्लाई करते थे। इस वजह से जामिनी रॉय जी इतने फेमस हुए। उन्होंने छोटी छोटी, सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, हर छोटे छोटे जो किस्से कहानियां हैं घर के अंदर घर के बाहर, उनको भी उन्होंने पेंट किया। अब हम आते हैं दूसरे मास्टर पेंटर की तरफ। ये है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ 1913 में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन पेंटर्स ऑफ इंडिया। एक ऐसी पेंटर थी जिनको हम कहते हैं इन आर्टिस्ट के लैंग्वेज में द इंडियाज फ्रीदा कालो। फ्रीदा कालो के बारे में मैं आपको बताऊंगी छोटी से, और क्यों इनको इंडियन फ्रीदा कालो कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज ओनली 29 when she passed away। बहुत जल्दी उनका डिमाइस हो गया। लेकिन बाय दैट टाइम उन्होंने अपना एक बहुत बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार कर लिया था। लोग उनके पेंटिंग्स को बहुत सराहते थे। और उनके बारे में छोटी सी बायोग्राफी मैं बता दूं। उनका जन्म 1913 में हुआ हंगरी बुडापेस्ट में। उनके जो फादर थे उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया, वो भी बहुत नामचीन आदमी थे, पर्शियन और संस्कृत के स्कॉलर थे। और ये भी कहा जाता है कि द फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर जवाहरलाल नेहरू एंड अमृता शेरगिल्स फादर उमराव सिंह शेरगिल जी। और उनकी माँ
मैरी एंथोनेट शेरगिल, वो हंगरी में बहुत फेमस सिंगर भी थी। और उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम इंदिरा था। इंदिरा के साथ उन्होंने काफी सारे नाटक भी किए हैं और पियानो भी सीखी थी उन्होंने। और 5 साल, when she was only 5 years old, she started painting. एल्विन बैकेटे उनके अंकल हुआ करते थे, वो इंडोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने देखा कि अमृता बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, तो उन्होंने अमृता को पुश किया और उनकी माँ के साथ when she was 16 years old, she went to Paris. पैरी में उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग लेना शुरू किया आर्ट के लिए, एकोल दे ब्यूक्लेट वहां पर। और भी मास्टर पेंटर है, इनके बारे में भी आप पढ़िए, जानिए। विंसेंट वैन गॉग, पॉल सेज़न, अमेडियो मोदिग्लियानी, पॉल गौकां, इनके पेंटिंग से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुई। और वहां पे उन्होंने जब पेंटिंग करना शुरू किया तो शी वाज गोल्ड मेडल मिला उनको अब उनके एक पेंटिंग पर, द यंग गर्ल्स बोल के। उन्होंने वेस्टर्न आर्ट स्टाइल को बहुत बढ़िया तरीके से अडॉप्ट किया था, लेकिन वो जिस तरीके से कलर्स लगाया करती थी, तो उनको बोला गया था कि यू विल बी अ बेटर आर्टिस्ट इफ यू रिटर्न टू इंडिया। अगर आप इंडिया वापस गई तो आपका आर्ट और खुलेगा। एंड इट एक्चुअली बिकेम ट्रू, क्योंकि जब वो इंडिया आई, इंडिया के अजंता इलोरा केव्स जानते हैं ना, अजंता इलोरा केव्स के जो पेंटिंग्स है उनको देख के वो ऐसे हैरान हो गई। और उन्होंने क्या किया कि अजंता की जो पेंटिंग्स है और उनका जो वेस्टर्न स्टाइल का पेंटिंग है, दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया और उन्होंने अपना ही एक अलग स्टाइल निकाला। सिर्फ अजंता नहीं, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स भी उन्होंने उनका स्टाइल भी अडॉप्ट किया। मैं दिखाती अमृता शेरगिल के ये कुछ पेंटिंग्स है। पहली वाली है द थ्री सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। द सेकेंड वन इज हर ओन सेल्फ पोर्ट्रेट। द थर्ड वन इज अ विलेज सीन। आप देख सकते हैं वो मिर्ची भी सुखाने के लिए दिए थे, शायद वो मिर्चियां भी साथ में है, सारे बैठे हुए परिवार के। देखिए, दिस इज द हिल वुमेन, ये है ब्रह्मचारी, और ये ब्राइड का को सजाया जा रहा है। और ये एक और उनकी सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग है। तो अमृता शेरगिल, ये देखिए ऊपर जो है सारे अजंता केव पेंटिंग्स हैं, ये स्टाइल, एंड नीचे ये जो मुगल मिनिएचर के स्टाइल्स हैं। दोनों को उन्होंने अपने वेस्टर्न आर्ट का जो स्टाइल उन्होंने सीखा था पैरी में, उनके साथ उन्होंने एक सा कर दिया, एंड द रिजल्ट वाज these kind of paintings. Can you see the similarity? The way of the head structure, the use of colors, compositions, ये वहां से इन्फ्लुएंस हो गया है। अब आते हैं कि उनको क्यों बोला जाता है इंडियन फ्रीदा कालो, क्यों बोला जाता है? फ्रीदा कालो is a Mexican artist. She was a Mexican artist. आप देख सकते हैं फ्रीदा कालो, she's a Mexican artist. और उनके बचपन में एक बहुत मेजर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से ज्यादातर शी यूज्ड टू बी बेड रिटन। उनकी 37 सर्जरीज हो गई थी लाइफ टाइम में। ज्यादा वो भी ज्यादा दिन शी कुडंट सर्वाइव दैट, बट वो बेड पे ही, वो इतनी पैशनेट आर्टिस्ट थी, वो बेड पे लेटे लेटे ही पेंटिंग्स किया करती थी। और जब भी वो उठ के खड़ी हो सकती थी, वो अपने पेंटिंग्स किया करती थी। सो व्हाई आर अमृता शेरगिल एंड फ्रीदा कालो वेरी सिमिलर? द फर्स्ट थिंग इज, दोनों ही सेल्फ पोर्ट्रेट्स किया करते थे। सेल्फ पोर्ट्रेट्स मतलब अपने ही पोर्ट्रेट्स को बनाना, वेरियस टेक्निक्स में। नीचे देखो, दो उनके काम हैं। वन इज फ्रीदा कालो's सेल्फ पोर्ट्रेट, द अदर इज अमृता शेरगिल का सेल्फ पोर्ट्रेट है।
तो दोनों ही बहुत सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाते थे। दोनों के पेरेंट्स ही डिफरेंट रेस और डिफरेंट कल्चर्स के हैं, तो दो रेस को एक साथ उन्होंने स्टाइल्स को इंटरमिंगल किया। बहुत ही सोशल लाइफस्टाइल था उनका, बड़े सारे दोस्त थे उनके और अपने हेरिटेज से बड़े प्राउड थे। वो दोनों ही बहुत बड़े फैशनिस्ता थे। फैशनिस्ता मतलब फैशन, जो बहुत फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं। आप देखोगे, अगर आप फ्रीदा कालो और अमृता शेरगिल के फोटोग्राफ्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फ्रीदा कालो, शी यूज्ड टू लव वेयरिंग मैक्सिकन ड्रेसेस एंड एक्सोटिक ज्वेलरी, और अमृता शेरगिल भी व्हेन शी केम बैक टू इंडिया शी यूज्ड टू वेयर साड़ीज, एंड उन्होंने साड़ीज को इंडिया में फैशनेबल इतना कर दिया कि हर सोशल गैदरिंग में वो साड़ी पहन के जाया करती थी। कैन यू सी दैट फोटोग्राफ ऑफ हर कि वो कैसे साड़ी पहनी हुई है उन्होंने। एंड इसके साथ साथ दे आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट विमेन आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि दोनों ने विमेन लिबरेशन के लिए, मतलब लड़कियों औरतों के लिए बहुत पेंटिंग्स बनाई हैं। उनके खुद के ड्राइंग्स में, पेंटिंग्स में औरतों के बारे में बताया गया है, उनके लिबरेशन के बारे में बताया गया है। एंड देन वो फेमिनिज्म मतलब जो के बारे में ज्यादा विमेन के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनको फेमिनिस्ट कहा जाता है। उनके लिए बहुत एक शी दे बोथ एन इंस्पिरेशन। तो पहले हमने देखा आउट ऑफ द 9 gems वी सॉ जामिनी रॉय जी, देन वी सॉ अमृता शेरगिल, और अब जो तीसरे मास्टर आर्टिस्ट है जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, आज उन्हीं की लिखी मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। इट्स रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore, everybody knows, he wrote our national anthem. He was the first to receive Nobel Prize in India. He was born in 1861 and सिर्फ उनको उन्होंने हमारा ही नेशनल एंथम नहीं लिखा, उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है, और श्रीलंका का नेशनल एंथम भी उन्हीं के एक गाने से, पोएम से बेसिकली ट्रांसलेटेड है। एंड ही वाज नोन एज अ पॉलीमैथ जीनियस। पॉलीमैथ का मतलब है कि जो बहुत सारे टैलेंट्स जिनमें है, और हर टैलेंट इज वेरी वेरी अव्वल दर्जे का। कोई भी उन्होंने ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने अपना टैलेंट नहीं आजमाया होगा, बिकॉज ही was a painter, he was a poet, he was an author, he was a singer, he was a composer, he was an actor also, he was an intellect, he was also a big spokesperson about Indian art and culture and literature, और वो वर्ल्ड टूर पे गए थे लेक्चर्स देने, पेपर्स पढ़ने, और उनका तो काम आपने देखा ही होगा। उनके सॉन्ग्स को हम रविंद्र संगीत कहते हैं। काम मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जो पहला वाला जो काम है, दिस इज हिज सिग्नेचर सील, रविंद्रनाथ ठाकुर, र थ, उसका सील है ये। उन्होंने अपना सील खुद ही डिजाइन किया था, और वो जब भी लिखा करते थे, ये उनकी हैंडराइटिंग है, वो लिखा करते थे, और जहां पे भी थोड़ी गलती हो गई वो काटते थे। वो काटते ऐसे ही नहीं थे, हम तो स्क्रैच आउट कर देते हैं या काट देते हैं, वो उसका भी एक पेंटिंग बना देते थे। तो उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखिए इस तरीके के होते थे। उसके साथ he started painting बहुत सालों बाद, when he was 60 years old, he started painting इंक के से। उन्होंने ज्यादा क्रेयॉन्स यूज करते थे। ये उनके द 7 फिगर्स है, ये उनका खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट है, पेन एंड इंक में किया हुआ। ये एक मैन का एक
आदमी का पोर्ट्रेट है। ये इसको कहते हैं द फैंटास्टिक बर्ड। ये उनका लैंडस्केप है वाटर कलर में। और ये एक है उनका फीमेल एक पोर्ट्रेट है, और वो फीमेल पोर्ट्रेट्स बड़े बनाया करते थे because there were a lot of women in his household who have inspired him, his mother, his wife, his daughter, and जो उनके भाई की wives थे वो खुद उनके घर पे the women were much ahead of their time। वो खुद poets थे, authors थे, उनकी बुक्स थी। तो वो एक ऐसे घर से बिलोंग करते थे। तो उनका जन्म हुआ जोराशांको ठाकुरबाड़ी। बहुत बड़ा, वो जमींदार थे ना, तो बहुत बड़ा मैंशन है वो। 1861 में जन्म हुआ। प्रिंस द्वारकानाथ के जनरेशन के लेगेसी के है, परिवार के है। उनके जो पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, वो खुद भी एक बहुत बड़े रिलीजियस रिफॉर्मर थे। उनके नेफ्यूज गगनेंद्र नाथ, अवनेंद्र नाथ, ये दोनों आर ऑल्सो अमंग्स द इंडियन जो इंडियन आर्ट के जो 9 जेम्स है उनमें से 2 हैं। तो आप समझ सकते हैं परिवार पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आर्टिस्टिक परिवार था। उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की लेकिन पूरा नहीं कर पाए, वो वापस आए। उन्होंने अपनी पोएट्रीज लिखना शुरू कर दी। बहुत छोटे जब थे तब से ही वो लिखते थे। और उनके जन्मदिन को सब कोई पता है, रविंद्र जयंती करके हम सब मनाते हैं, और बेंगोलीज मनाते हैं पोचिशे बोईशाख। और उनके जो एस्टेट्स हैं सब बांग्लादेश में हैं। और उन्होंने फिर सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, आप सब ने सुना होगा, शांति निकेतन। शांति निकेतन मतलब जहाँ पे शांति का वास हो, निवास हो। तो उन्होंने 1901 में शांति निकेतन बनाया, जहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न जो वो जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनका एक साथ जहाँ पे मिलाव हो। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके स्कूल में या कॉलेज में पेड़ के नीचे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फूलों के बीच बैठ के, या पूरे खाली मैदान में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं। शांति निकेतन में किया जाता था, अभी भी है। और उसी को यूनिवर्सिटी कन्वर्ट किया गया 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। वहां पर बहुत आसानी से एडमिशन नहीं मिलता लेकिन उन दोनों को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, और बड़े जोरदार तरीके से वो अपने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस या नेहरू जी और गांधी जी सब आते थे शांति निकेतन में, उनसे बातचीत करने, उनसे एडवाइस लेने। और वो चाहते थे कि इंडिया आजाद हो और अपनी तरीके से आजाद हो। और इसके साथ उन्होंने अपना काम भी, उन्होंने बहुत सारी छोटी कहानियां लिखी, बड़ी कहानियां लिखी, नॉवेल्स लिखे, सॉन्ग्स लिखे, सॉन्ग्स के कंपोज भी उन्होंने किया। वो नाटक भी करवाते थे, वो खुद भी एक्टिंग करते थे उसमें कभी कभी। फिर उन्होंने गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि बेसिकली सॉन्ग ऑफरिंग्स का, जब 1902-1907 में उनकी वाइफ मृणाली देवी और उनके 2 बच्चों का देहांत हो गया, तो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। एंड उससे प्रेरित होकर उन्होंने गीतांजलि उन्होंने लिख डाली पूरी। एंड दैट वाज सो मच, W.B. येट्स और एंड्रू गाइड ने इतना उसको प्रेज किया कि ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913। एंड उनको नाइटहुड भी 1915 में दिया गया था। सर रविंद्रनाथ टैगोर
नाइटहुड जिनको मिलता है उनको सर बोलते हैं, सर रविंद्रनाथ टैगोर बोला जाता था, लेकिन उन्होंने वो नाइटहुड वापस दे दी बिकॉज जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसके चलते उन्होंने वो नाइटहुड नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया था, ही रिफ्यूज्ड. And then from 1912 onwards, he used to, go out. China गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहां पर वो आइंस्टाइन जैसे लोगों से मिले. वहां पर उन्होंने अपने इंडियन आर्ट कल्चर पे बड़े सारे प्रेजेंटेशंस दिए, उनके बारे में बातचीत की. और उनको फिर 1920s जब वो 60 साल के ऑलमोस्ट थे तब उन्होंने पेंटिंग्स करना शुरू किया, जो पेंटिंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट कंटेम्पररी मॉडर्न पेंटिंग्स ऑफ इंडियन आर्ट. इसीलिए उनको मास्टर पेंटर कहा जाता है और बहुत सारे उन्होंने पेंटिंग्स किए थे. इसके बाद 1941 में उनका देहांत हो गया. In the same room that he was raised in Jorashan. इसके साथ एक और मजेदार किस्सा है. 2004 में उनका जो नोबेल प्राइज था ना, एक मेडल मिलता है नोबेल प्राइज, वो डिस्प्ले पे था शांति निकेतन में. आपको पता है वो प्राइज चोरी हो गया था. इट वाज स्टोलन एंड बड़ा हवा मच गया. उनका नोबेल प्राइज चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया. बहुत सारा सर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने एक बाउल को पकड़ा. बाउल मतलब वहां के जो फोक सिंगर्स होते हैं वो नोमैडिक होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं, और उसके बड़े सारे शागिर्द थे. उनके पास से वो नोबेल प्राइज उन्होंने बरामद की और वापस शांति निकेतन पे वो डिस्प्ले पे आया. तो अब बहुत सिक्योरिटी हो गई है उसके आसपास. तो लेकिन हमारे देश में भी होता है कि नोबेल प्राइज चोरी हो जाए. तो यहाँ पे मैं ये हूँ और रविंद्रनाथ टैगोर के ही मैं उस पे आ रही हूँ. रविंद्रनाथ टैगोर आपको तो पता ही है कि जब हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो रविंद्र संगीत आता है, नेशनल एंथम दिमाग में आता है. लेकिन क्या आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भूतों की कहानियां भी लिखी हैं? तो आज मैं आपको एक भूत की कहानी सुनाऊं. रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक भूत की कहानी. एक बड़ी मजेदार कहानी है. वैसे तो उनकी सबसे जानी मानी भूत की कहानी है, आप सर्च करना, खुदी तो पाषाण बोल के. वो 5 छोटी छोटी कहानियों का एक वॉल्यूम है. खुदी तो पाषाण का मतलब इंग्लिश में होता है द हंग्री स्टोन्स. लेकिन आज मैं वो नहीं सुनाने वाली. मैं आपको सुनाने वाली हूँ द स्केलेटन बोल के एक उनकी कहानी है, छोटी सी कहानी है. उसको ये कहानी उन्होंने लिखी थी 1892 में. कहानी का नाम है कंकाल. कंकाल यानी द स्केलेटन. तो आज हम उस कहानी को सुनेंगे. ठीक है, सब रेडी है? यस, चलो आज भूत की कहानी सुनते हैं. ओके, गुड. कंकाल यानी द स्केलेटन, रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक
भूत की कहानी जो उन्होंने 1892 में लिखी थी। शुरू करते हैं। मैं और मेरे दो बचपन के साथी जिस कमरे में सोते थे, उसके पास वाले कमरे में एक असली नरकंकाल का निवास था। जब रात में हवा चलती थी तो वो कंकाल भी हवा से हिलता था और अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती थी, जैसे और जब सुबह हो जाती थी तब भी ऐसे ही आवाजें आती थी। क्योंकि हम जो तीन दोस्त थे, हम उस कंकाल को हिलाते थे। अब हुआ यूं कि हम जो तीन दोस्त थे वो कैम्बल स्कूल के एक स्टूडेंट के अंडर ऑस्टियोपैथी सीखा करते थे। ऑस्टियोपैथी यानी हड्डियों से जुड़े रोग और बीमारियों के बारे में जानना। तो उस कंकाल को हिलो डुलो के हम उसकी बदौलत ऑस्टियोपैथी सीखा करते थे और पढ़ाई लिखाई करते थे, क्योंकि हमारे मास्टर जी को लगा कि हम बहुत बड़े विद्वान बनेंगे एक दिन। जो भी हो, काफी समय निकल गया। सच कहें तो हमारे दिमाग में ऑस्टियोपैथी की विद्या कितनी गई अंदर, कितनी नहीं गई, या हमने क्या क्या सीखा पता नहीं, लेकिन उन कुछ सालों में उस कमरे में लटक रहे वो कंकाल का कब कहां कैसे गायब हो गया वो भी हमें पता नहीं। बड़े साल हो गए उस कंकाल की आवाज नहीं आती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उस कमरे में रात को सोना पड़ा। इधर उधर मैं करवटें ले रहा था, नींद तो आ नहीं रही थी। और हमारे कमरे में एक कोने में छोटा सा एक तेल का दिया था, और वो तेल का दिया इतना छोटा था कि अचानक फड़ 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 करते करते बुझ गया। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया, सब चुपचाप हो गया। अब क्या हुआ था कि मेरे घर पे भी काफी बुरा वक्त चल रहा था। तो जैसे ही दिया बुझ गया, मुझे डर का एहसास होने लगा। ऐसा लगा कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मुझे उस कंकाल की याद आने लगी। ऐसा लगा ऐसा लगा तभी कि मेरे कमरे में कोई है। पास कोई भटक रहा है। मेरे पलंग के ऊपर मच्छरदानी लगी हुई थी और मैं देख रहा था, सुन पा रहा था कि कोई परछाई मेरे कमरे में इधर से उधर, यहां से वहां कोई चल रहा है। शायद वो परछाई कुछ कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन शायद उसे मिल नहीं रही थी, और इसी वजह से वो पूरे
कमरे में इधर उधर यहाँ वहां चल रही थी। अब जैसे ही मुझे ये पता चला, मेरे तो डर के मारे होश ही उड़ गए, नींद भी चली गई। और सच बोलूं तो मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब मुझे इस डर पर काबू पाना था। तो पता नहीं मुझ में क्या हुआ, क्या सोचा मैंने, और अचानक जोर से चिल्ला के बोल पड़ा, कौन कौन है वहां? दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। ऐसा लगा कि वो परछाई रुक गई। कुछ देर बाद वो परछाई पास आने लगी, और पास और पास। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं हूं, मैं। अरे इस कमरे में एक कंकाल है, वो कंकाल कहाँ गया, बताओगे मुझे? मेरे तो दर्द के मारे सारी नींद चली गई। ऐसा लगा कि कोई डरावना सपना देख रहा हूं मैं। तो डर पर काबू पाने के लिए दोबारा मैंने बोला, कुछ भी है, कोई काम नहीं काज नहीं है, इस रात को तुम कंकाल ढूंढने निकली हो, क्या बात है? जाओ जाओ, अब मुझे सोने दो। ऐसे इस कंकाल की जरूरत क्या है तुम्हें? अचानक लगा कि वो परछाई और पास आ गई, और उसने कहा, अरे क्या कह रहे हो तुम? ये मेरा कंकाल है, मेरे दिल की हड्डियां हैं उसमें, मेरे 26 साल का यौवन है। अरे कभी कभी देखने का तो मन करता है ना उसे। मैंने अचानक जवाब दिया, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ढूंढते रहो अपने कंकाल को, मुझे सोने दो, तुम जाओ। जैसे ही ये बोला मैंने, वो परछाई बोल पड़ी, अकेले हो? फिर तो थोड़ा बैठती हूँ, हाँ, दो चार बातें करते हैं। जब मैं इंसान हुआ करती थी, तब तब बहुत बातें किया करती थी। अब तो सिर्फ शमशान घाटों पर भटकती रहती हूँ। तो चलो आज तुमसे ही थोड़ी बातचीत कर लूं। और जैसे ही उसने ये कहा, ऐसा लगा कि मेरे मच्छरदानी के पास पलंग पर वो धप से बैठ गई। अरे वो तो मेरे पास आके बैठ गई। अच्छा, अब क्या करूं, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। अम, अम, मैं भूत से बात कर रहा हूँ, परछाई से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन अब जब बात छिड़ी गई, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हारे मन को तसल्ली मिले, तो कोई एक बढ़िया कहानी सुनाओ। वो परछाई बोली, कहानी? मजेदार कहानी सुनोगे? तो फिर तो मुझे अपनी कहानी बतानी पड़ेगी।
तुम्हारी कहानी? हाँ, मेरी कहानी बड़ी मजेदार है। बड़ी मजेदार। जब मैं इंसान हुआ करती थी तब की कहानी है ये। चलो, मैंने कहा, तो सुनाओ कहानी। रात के तब 2 बज रहे थे, तो परछाई ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं इंसान थी और छोटी थी, तब मुझे सिर्फ एक ही आदमी से बड़ा डर लगता था। वो इंसान थे मेरे पति। ऐसा लगता था मानो मानो मैं कोई मछली हूं और वो एक कसाई है। लेकिन मेरी शादी के 2 महीने में ही मेरे पति गुजर गए और मेरे परिवार वालों ने बड़ा दुखड़ा रोया पीटा। लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरे सास को कहा कि अरे, ये तो विष कन्या है। ये बोल के मुझे घर वापस भेज दिया गया। अरे, सुन भी रहे हो? कहानी कैसी लगी? मैंने कहा, अच्छी अच्छी शुरुआत है, मजेदार है, मजेदार है। आगे 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 सुनाओ। तो सुनो आगे। तो मैं तो खुशी खुशी, जिस आदमी से इतना डर लगता था, उससे बच के तो घर वापस चली आई। कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। और घर वापस आके मैं बड़ी खुश थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, बड़ी होने लगी। और तुम जानते हो कि मुझे सबसे छुपाकर रखा जाता था, क्योंकि मैं बड़ी सुंदर थी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है? मैंने जवाब दिया, अरे, ये कैसे बता सकता हूं मैं? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कंकाल को ही देखा है। मुझे कैसे पता कि तुम सुंदर थी या सुंदर हो? तो परछाई ने जवाब दिया, क्यों? वो जो मेरी खोपड़ी के 2 बड़े बड़े छेद हैं, उसमें कभी मेरी सुंदर सुंदर आंखें हुआ करती थी, काली काली, हिरनी जैसी। और वो जो कंकाल के जो दांत दिखाई देते हैं, उसके ऊपर कभी मेरा मुंह हुआ करता था, लाल लाल सा। गुलाबी गुलाबी गाल थे मेरे, काले काले बाल थे। बहुत सुंदर थी मैं, इतनी लालिबा, इतनी सजीली सुंदरता। लेकिन लेकिन कैसे बताऊं मैं? शर्म आती है मुझे, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। और और तुम तीनों मेरे इस शरीर के साथ ऑस्टियोपैथी सीखते हो। वैसे कौन जानता था कि मेरे शरीर से ऑस्टियोपैथी भी सीखी जाती है? जानते हो, एक डॉक्टर बाबू थे जिन्होंने मुझे कौनोक चापा का नाम दिया था, मतलब सुनहरे रंग का फूल, गोल्डन फ्लावर, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हुआ करती थी। मेरे कंकाल को देखकर ये समझना तुम्हारे बस की बात ही नहीं। मैंने झट से जवाब दिया, अगर तुम्हारा शरीर होता तो देख के बता सकता, कंकाल को देख के मैं क्या बताऊं? हाँ, बोलो। अब चलो, छोड़ो, कहानी यहीं तक रखो। मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो परछाई ने कहा, अरे अरे, कहानी तो अभी शुरू हुई है, ऐसे कैसे जाने दो? कहानी तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। तो जानते हो, क्योंकि
मेरे भैया ने कभी शादी नहीं की, तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। और और मेरा घर से बाहर आना जाना भी ज्यादा होता नहीं था। लेकिन भैया के एक दोस्त थे, उसका नाम था शशि शेखर। वो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए तो वो मेरे घर पे आने जाने लगे। बहुत ही हैंडसम थे वो। मैं ना छुप छुप के उनको देखती रहती थी, उनको देखती रहती थी, लेकिन कभी उनसे उस तरीके से बातचीत नहीं हुई। शर्म आता था। लेकिन एक दिन मैं अचानक बीमार पड़ गई। तब वही डॉक्टर शशि शेखर मेरा इलाज करने आए और पहली बार हम आमने सामने मिले। जानते हो, वो वो मुझसे भी ज्यादा शर्मा रहे थे। उन्होंने मेरे भैया को कहा कि उसका तो नब्ज देखना पड़ेगा। मैंने तो अपने दोनों हाथ ऐसे आगे कर दिए। उन्होंने मेरा नब्ज देखा, फिर मेरे को दवाइयां लिख दी और मेरा बुखार झट से ठीक हो गया। ये सबसे पहले मुझे लगा कि मेरे मेरी धड़कनें बड़ी तेज हो रही हैं। मैंने झट से आवाज लगा के बोला, हाँ, ऑस्टियोपैथी सीखता हूँ, सबका हार्ट रेट अलग अलग होता है। वो होता है या नहीं वो तो तुम ही जानो। लेकिन जानते हो, हर शाम मैं सजती सवरती, गहने पहनती, पीले रंग की साड़ी पहन के, चूड़ा बांध के, जूड़े पे फूल लगा के, मैं बगीचे में बैठती छोटा सा आईना लेकर और अपने आप को उस आईने में देखती रहती और सोचती कि मैं कैसे शर्माती हूँ, मैं कैसे हंसती हूँ। मेरे कंकाल जैसा थोड़ी ना था मेरी शक्ल। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने कहा। यहाँ तक कहानी काफी काफी दिलचस्प है, मैंने कहा। वैसे अगर यहाँ कहानी खत्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं। सब कुछ अच्छा अच्छा है। सब कुछ अच्छे की तरफ ही जा रहा है, नहीं? तो ठीक है, अब बंद करो कहानी, मुझे सोने दो प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन परछाई ने जवाब दिया, अरे ऐसे कैसे? कहानी का सबसे रोमांचक भाग तो अब शुरू होता है। मैंने कहा, सच? अच्छा, जब जब तुमने सुनाना शुरू किया तो आगे भी सुना ही दो कहानी। परछाई ने कहा, जानते हो, जब उन्होंने डॉक्टरी खत्म कर ली तो हमारे घर के पहले मंजिल पर उन्होंने अपना चेम्बर खोला। मुझे जब भी मौका मिलता मैं उनसे बात करने पहुंच जाती। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे बातें करना बड़ा पसंद था जब मैं इंसान थी। तो मैं उनके पास पहुंच जाती और घंटों दर घंटे हम दोनों बातचीत करते रहते। और मैं उनसे पूछती कि दवाइयों के बारे में, जहर के बारे में, अ, और पता है, वो डॉक्टरी ज्ञान मुझे झाड़ते रहते और मुझे दवाइयां दिखाते, जहर दिखाते और बताते कि कौन सी दवाई किसके लिए है, कौन सा जहर किसके लिए है, और मुझे सारा ज्ञान सुनाते। इस तरह दिन कटने लगे। अब बस मेरी कहानी खत्म ही होने वाली है, परछाई ने कहा। खत्म होने वाली है? रात भी खत्म होने वाली है और ना मेरा सोना हुआ आज। चलो आगे सुनाओ। अब अब जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, परछाई ने कहा, वो है असल कहानी। मैंने देखा कि वो डॉक्टर
कभी कभी बड़े बन ठन के सूट कोट पहनकर मेरे भैया से घोड़ा गाड़ी लेकर कहीं चले जाते। मैं सोचती रहती कि वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। बड़ा गुस्सा आता था मुझे, क्योंकि मुझसे वो बिना बात करे चले जाते थे। तो एक दिन मैंने भैया से पूछ ही लिया कि भैया बताओ तो सही, वो डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं। भैया ने बताया, शादी करने। हाँ, शादी करने। फिर धीरे धीरे पता लगा कि वो जिस लड़की से मिलने जाया करते थे, उससे शादी करने पर उन्हें 12,000 रुपए मिलेंगे, और इसीलिए वो घोड़ा गाड़ी लेकर बंधन के चले जाते थे उस लड़की से मिलने, मुझे बिना बताए। बड़ा गुस्सा आया मुझे। तो क्या हम दोनों में कुछ भी नहीं था? मैं रोज उनके लिए सजती सवरती, उनसे ढेर सारी बातें करती, और वो किसी और से शादी के लिए चले गए। और रोज रोज मैं उनको बोलती रहती, क्यों डॉक्टर बाबू, शादी करने जा रहे हो तो शादी के मिठाई कब खिलाओगे, नाच गाना कब होगा? और डॉक्टर बाबू मेरे से बात नहीं करते। बहुत गुस्सा आने लगा मुझे। और एक रात की बात है, मेरे भैया और वो डॉक्टर बाबू शरबत पी रहे थे। मैं फिर से कमरे में घुस के मैंने बोला, डॉक्टर बाबू, जिससे शादी करने जा रहे हो उससे मुलाकात का वक्त आ गया, क्यों जाना नहीं है? शरबत खत्म करके डॉक्टर बाबू चले गए। वैसे यहाँ पर बता दूं कि उनके शरबत के ग्लास में मैंने जहर मिला दिया था, और ये वही डॉक्टर बाबू ने मुझे सिखाए थे इस जहर के बारे में। चुपके से उनके चेम्बर से मैं वो जहर का पुड़िया लेके आई थी, और उनके ग्लास में मैंने शरबत में मिला दिया था। वो शरबत पी के डॉक्टर बाबू चले गए। उस दिन बड़ा सजी थी मैं, अच्छी सी एक साड़ी पहनी थी, बड़े गहने पहने थे, जूड़े पे फूल लगाया था, और वही जहर मैंने भी खा लिया। मैंने सोचा कि जब मेरी लाश मेरे कमरे में मिलेगी तब मेरे चेहरे पे एक हंसी होगी। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ, मेरा घर कहाँ है? वो कमरा कहाँ है? अम, मेरी वो साड़ी कहाँ है? मेरे वो गहने कहाँ हैं? मेरा वो आईना, वो कहाँ? जब मेरी आंख खुली तो मैंने सिर्फ एक ही आवाज सुनी, और ये आवाज सुन के मैंने देखा कि मेरे कंकाल से तीन स्टूडेंट्स ऑस्टियोपैथी सीख रहे हैं। और वो कंकाल पे जो मेरे दांत फाड़ के जो हंसी है, उसके ऊपर जो मेरे चेहरे की हंसी थी, वो तो रही नहीं, वो तो कहीं खो गई। मैंने कहा,
बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई तुमने। मतलब इतने सालों से हम जो कंकाल लेके जो ऑस्टियोपैथी सीखते थे वो तुम्हारा कंकाल है, ये हमें मालूम नहीं था। आइंदा ध्यान रखेंगे, लेकिन तुम्हारा कंकाल कहाँ है मुझे पता नहीं। वो हमें भी काफी सालों से नजर नहीं आई। अ, लेकिन तुम्हारी कहानी बहुत बहुत मजेदार थी। क्या हुआ? तुम सुन रही हो? अभी भी हो इस कमरे में? इस बार ना कोई परछाई थी, ना कोई जवाब। धीरे धीरे सूरज की रोशनी खिड़की से उस कमरे में अंदर आने लगी। ये थी कहानी कंकाल, रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ। वैसे एक बहुत ही डरावना फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेडिकल कॉलेजेस में जहां पे एनाटॉमी सिखाई जाती है या जहां पर ऑस्टियोपैथी सिखाई जाती है, आप जानते हैं आजकल आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के लैब में या कॉलेज के लैब में एक ह्यूमन स्केलेटन लटकता है। वो तो आजकल प्लास्टिक या फाइबर का बना हुआ होता है, लेकिन उस टाइम पे वो सच का इंसान का कंकाल हुआ करता था। इट वॉज अ रियल स्केलेटन। तो सोच के देखिए, अगर आप एक रूम में बंद है एक कंकाल के साथ, दैट टू रियल स्केलेटन, तो क्या हुआ होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस तरीके से कहानी को लिखा कि अब आप लोग बता भी नहीं सकते कि वो जो छात्र था, वो स्टूडेंट था, वो सच में किसी भूत के साथ बात कर रहा था, या सच में वो कोई सपना देख रहा था, या उसने अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बना ली। लेकिन इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें विमेन लिबरेशन यानी औरतों की बातों को सामने रखा। बाल विवाह, बाल विधवा, यानी जब चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में उन्होंने बात कही, क्योंकि ये जो लड़की थी जिसका कंकाल था उसका बचपन में ही शादी हो गई और इसके वजह से उसको काफी सहना पड़ा। तो इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भूत की कहानी में कितनी सारी चीजें बता दी। तो आप भी ये शायद नेटफ्लिक्स में भी रिलीज होने वाली है इस कहानी, हिंदी ट्रांसलेशंस भी हैं, आप देखिए, जानिए। और भी बड़े सारी भूतों की कहानियां लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप वो भी पढ़िए, किताबें अवेलेबल है। और श्योरली 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 एनजीएमए के वेबसाइट पर जाइएगा और द 9 जेम्स के बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट टाइम आई विल कम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल रोमांचक historical story written by one of the master painters. Paula, मैं आपको ट्रांसफर करती हूँ। Thank you very much for a wonderful show. I think what I was in fact observing all our participants whosoever has joined since the beginning, उसमें से कोई भी सेशन को लीव नहीं किया। तो सेशन को इस तरीके से कंडक्ट किया गया है, एंड स्पेशली श्रीमोई एक बहुत ही एक मैच्योर्ड एक स्टोरी टेलर की तरह जैसे सबको बांध के रखा गया है, एक बहुत ही फैंटास्टिकली एक प्रेजेंटेड एक स्टोरी सेशन है। तो जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट सब लोग जुड़े हुए हैं, आई वुड सजेस्ट कि ये स्टोरी टेलिंग सेशन हर ट्यूसडे को 5 o'clock ये सेशन होगा। तो जैसे आज फर्स्ट वीक है, नेक्स्ट 2 सेशन हमारे लिए 2 ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाला है, 14th of June एंड 21st of June। सेम प्रोसेस में आप लोग लिंक कलेक्ट करके ज्वाइन करिएगा। आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और सबको ये लिंक्स देखिए, उनको इनवाइट करिएगा कि हमारे सेशन में आए, ज्वाइन करें, आपके साथ बैठे। जैसे आज भूत की कहानी आपने जिन्होंने सुना है, जिनके पेरेंट्स अभी ऑफिस में हैं, आने वाले हैं,
आई वुड सजेस्ट कि बच्चों आप अपने पेरेंट्स के साथ भी ये स्टोरी शेयर करिए, और it was a amazing session. So thank you very much for all the participants for being with us, and thank you Srimoy for giving us a wonderful session. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Thank you.